Hello everyone. Today in this module we are doing the activity of chapter number 6, that is lines and angle, and this is our activity number 3. First activity we have done of chapter number 3, coordinate geometry. Second activity we have done of chapter number 12, Heron's formula. Now the third activity is of chapter number 6, lines and angles. Now first of all, instruction: do the given activity in the practical file, first one, and the second, do the writing part on the lining page and paste the figure on the blank page, and then upload your activity by Thursday, that is 20th of August. Now first of all, you will write the aim. Aim is to verify by paper cutting and pasting that when two parallel lines are cut by a transversal, then first part, each pair of corresponding angles are equal when the two parallel lines are there and one line, that is called transversal, cut the lines, then each pair of corresponding angles are equal. Second thing, each pair of alternate interior angles are equal, and each pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary. That is called supplementary, means 180 degree. The interior angles on the same side of the transversal, so these are the co-interior angles, as we have studied in the chapter. So these are called, on the same side of the transversal, the interior angles are called co-interior angles. Now material required for it is craft paper, pair of scissors, Fevicol, craft paper, pair of scissors, Fevicol, colored pen, geometry box, etc. Now next thing, procedure. Now how you will draw the figure, how you will show this activity. The procedure is there. Using a scale, first point is, using a scale draw two parallel lines L and M and a transversal P. First of all, you will take a chart paper or a craft paper, and on that paper, using a scale, you have to draw two parallel lines L and M and a transversal P. मीन्स उस पैरेलल लाइन एल एंड एम को एक ट्रांसवर्सल पी कट कर रहा है. नंबर ऑफ एंगल्स सो फॉर्म्ड लेबल दैम एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8 रेस्पेक्टिवली. तो ओनली यू हैव टू label the angle 1, 2, 3 and 4. Now then mark angle 1 as green, angle 2 as yellow, angle 3 as red and angle 4 as blue respectively. Now I am showing you the figure. What you will do, first of all, you will take, don't paste it first, you will take a craft paper or a chart paper. Okay, now then you have to draw these two lines L and M. These are parallel lines, and the transversal P, this is the transversal. Now the angle formed, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Now angle 1 you have to mark as green. ये यहाँ पे मैंने जो G लिखा हुआ है, that is green. Then angle 2 yellow, तो Y means yellow. Angle 3 red, तो R means red. And angle 4 blue, तो B means blue. Now here तो you will write G, B, R and Y. Then after that, angle 1, when you will cut angle 1, so you will cut on the craft paper, green color craft paper, angle 1, and angle 2 you will cut on yellow color craft paper, angle 3 you will cut on red color craft paper, and angle 4 you will cut on blue color craft paper. So first of all, and don't paste this chart paper. First you will draw the lines, then mark the angles, then after that, when you will mark the angles, after that take a compass and keep it here, and then mark this line, this dotted line, this line here, means you have to cut out this angle. तो पहले तो आप इसको मार्क करोगे विद द पेंसिल. यहाँ से ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, तो ये एंगल्स मार्क करने. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क दीज एंगल्स. मार्क करने के बाद आफ्टर दैट विद द कटर
with the help of cutter or with the help of scissor you will cut this carefully and neatly. तो यहाँ से आपको ये एंगल ऐसे कट करना है, जैसे यहाँ पे हमने इसको डॉटेड लाइन से मार्क कर दिया और ये यहाँ से आपको कट करना है। तो जो ये ब्लू कलर वाला आपका चार्ट पेपर है वो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा वो। तो ये आपको यहाँ से नीटली कट करना है विद द हेल्प ऑफ कटर। अगर आप कटर से करोगे तो बहुत नीटली कट होगा। देन ऐसे ही एंगल 4 ये आपको ऐसे कट कर लेना है कटर से, लाइक दिस, ठीक है। आफ्टर दैट ये वाला एंगल नंबर 3 कटर से कट कर लेना है, एंड देन एंगल नंबर 2 कटर से कट कर लेना है। तो ये जो आपका हॉलो हो जाएगा, ये जो पेपर है ये इस जगह से आपके क्या हो जाएंगे, हॉलो हो जाएंगे। तो आफ्टर दैट यू विल पेस्ट दैट चार्ट पेपर और योर क्राफ्ट पेपर ऑन द ब्लैंक पेज। जब आपका ये कटआउट्स हो जाएंगे उसके बाद आपको पेस्ट करना है, पहले पेस्ट नहीं करना है। ओके, नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। आफ्टर दैट नाउ 3 points we have completed. Again come to the procedure. 3 points we have completed. Mark angle 1 as green, angle 2 as yellow and all. Now point number 4, with the help of scissor cut out angle 1, 2, 3, 4 as shown in the figure. Now this also we have completed. Now after that trace the above angles on the tracing paper. अब आपके पास 4 angles कट के आए हैं। अब उसमें पहले से ही आप उसके ऊपर या उसके पीछे एंगल 1, 2, 3, 4 मार्क कर लेना, वरना क्या होगा कि कौन सा एंगल 1 है कौन सा एंगल 2 है वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने एंगल 1 ग्रीन ये कट किया है तो आपके पास जो भी क्राउड, जैसे मेरे पास ये चार्ट पेपर ब्लू कलर का है तो सारे एंगल्स ब्लू कलर के कट होके आएंगे। अब एंगल 1 उसमें से कौन सा है वो पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही एंगल 1 को कट करेंगे, राइट ऑन दैट एंगल 1। जैसे ही एंगल 3 को कट किया उसके ऊपर एंगल 3 लिख देना है, नहीं तो सारे एंगल मिक्स हो जाएंगे। ओके, नाउ अब क्या करना है, जब ये चारों एंगल्स आपके 1, 2, 3 एंड 4 कट हो गए, उसके बाद में आपको ग्रीन कलर के एंगल्स कट करने हैं। तो जो आपका एंगल ये ब्लू कलर वाला कट हुआ है, जो चार्ट पेपर वाला एंगल कट हुआ है आपका, उस चार्ट पेपर वाले एंगल को ग्रीन कलर के क्राफ्ट पेपर पे रखना है और उसके ऊपर रखकर और उसी मेज़र का एंगल कट करना है ग्रीन पेपर से, लाइक आई एम शोइंग यू। यहाँ पे ये देखिए, ये एंगल 1। अब हमारा चार्ट पेपर तो ब्लू था बट ये ग्रीन कलर के क्राफ्ट पेपर पे आपको कट करना है सेम मेज़र का। तो ये आपका एंगल 1 हो गया ग्रीन का, ये एंगल 2 हो गया येलो, एंगल 3 हो गया रेड और एंगल 4 हो गया ब्लू। नाउ 1, 2, 3, 4 ये आपको यहाँ पे कट करके, इसको येलो कलर से कट करना है, इसको रेड कलर से कट करना है, इसको ब्लू कलर से कट करना है। आप ट्रेसिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो कि जो आपने यहाँ से जो भी कटआउट्स हैं आपके वो आपने ट्रेसिंग पेपर पे रखा और उसके नीचे, ट्रेसिंग पेपर के नीचे ग्रीन कलर का ग्लेस पेपर या आपका क्राफ्ट पेपर रखकर और फिर उससे भी आप कटआउट कर सकते हो। ना आफ्टर दैट उसके बाद में आपको ये चार्ट पेपर आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके नीचे ये एंगल 1, 2, 3, 4 पेस्ट करके इस तरीके से टेबल बनानी है। देन अब यहाँ पे एंगल 1 ये ग्रीन कलर का। नाउ हाउ मैनी एंगल 1 वी हैव टू यूज़ इन दिस। तो आपको एंगल 1 के कितने कटआउट्स करने हैं, एक कटआउट तो आपका यहाँ लगेगा एंगल 1 का इस टेबल में, देन 1 कटआउट आपका यहाँ लगेगा ग्रीन कलर का, बस ओनली 2। तो एंगल 1 जो है वो आपको 2 कटआउट्स ग्रीन कलर के एंगल 1 लेने हैं। एक कटआउट आपको इस टेबल में पेस्ट करना है और एक कटआउट आपको यहाँ नीचे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में पेस्ट करना होगा। ये यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आपको पेस्ट करना होगा। नाउ एंगल 2, हाउ मेनी एंगल 2 वी नीड, 1 एंगल 2 इज़ तो हियर इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल 2 यहाँ पे रहा ऑल्टरनेट इंटीरियर में और एक एंगल 2 यहाँ रहा को इंटीरियर एंगल्स में। तो 1, 2, 3 और एक इस टेबल में 4। तो जो एंगल 2 है वो आपको येलो कलर के 4 कटआउट्स लेने हैं। देन एंगल 3 1 तो ये रहा, देन आफ्टर दैट 1 यहाँ रहा। तो आपको 2 एंगल 3 आपको 2 चाहिएंगे। तो 2 रेड कलर के एंगल 3 आपको कट करने हैं। नाउ नेक्स्ट एंगल 4
एंगल 4 1 तो ये टेबल के लिए एंड 1 यहाँ के लिए, तो टोटल आपका यहाँ पे 2 एंगल 4 चाहिएंगे। तो एंगल 1 आपको चाहिए 2, एंगल 2 आपको चाहिए 4, एंगल 3 2 चाहिए और एंगल 4 भी आपको कितने चाहिए 2। मीन्स आप जो एंगल 1 ग्रीन कलर का कट करोगे वो 2 एंगल्स कट करने हैं, एक टेबल के लिए और एक वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। एंगल 2 येलो कलर के जो कट करोगे वो 4 एंगल्स कट करोगे, बट उनका मेज़र सेम होना चाहिए। मीन्स आप एक के ऊपर एक रख के ही कट करना तो आपका क्लियर आएगा, और अगर कटर से कट करेंगे तो बिल्कुल नीट आएगा। नाउ एंगल 3 2 चाहिए आपको, तो रेड कलर के 2 एंगल्स कट करने हैं, और एंगल 4 ब्लू कलर के 2 एंगल्स कट करने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now point number 6, place cutouts of the angle 1 and 2 over each other। एंगल 1 और 2 को एक दूसरे के ऊपर रख के और आपको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट, प्लेस कटआउट ऑफ द एंगल्स एंगल 2 एंड एंगल 3 ओवर ईच अदर। तो जब आप एंगल 1 और एंगल 2 को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपको सिर्फ उनके कॉर्नर्स को पेस्ट करना है, जिससे कि हम उसको ओपन करके देख सकते हैं, मतलब वो एक फ्लैप के जैसा हो जाएगा ना। एंगल 2 और एंगल 3 को भी एक दूसरे के ऊपर रखना है और सिर्फ कॉर्नर्स पे आपको कॉर्नर्स को पेस्ट करना है, लाइक दिस। यहाँ पे ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन है और ये येलो है। तो एंगल 1 जो ग्रीन है उस पर 1 लिखना है, एंगल 1 लिखना है, और जो येलो है उस पर एंगल 2 लिखना है। तो सिर्फ आपको कॉर्नर्स पेस्ट करने हैं, तो आपको ये फ्लैप के जैसे ओपन करके हम उसको देख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 3 आप देखोगे, ये एंगल 3 हमारा रेड कलर का था, उसके नीचे येलो कलर का एंगल 2 है। तो सिर्फ कॉर्नर्स पेस्ट करने हैं जिससे कि उसको ओपन करके हम देख सकें। तो एंगल 2 एंड 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स दे आर इक्वल इन मेजर। नाउ जो एंगल 2 एंड 4 है, अब एंगल 2 एंड 4 को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है। एंगल 2 एंड 4 को आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो आपका एंगल 2 है, एंगल 2 को यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, और एंगल 4 को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये जो आपका सेंटर पॉइंट है वो आपका ओ हो जाएगा। और यहाँ से एक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये ऐसे एंगल ड्रॉ कर देना है, सॉरी, ये आपको एंगल ड्रॉ कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल 2 और एंगल 4 मिलके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज़ आवर एक्टिविटी। यहाँ पे अगेन आई एम शोइंग यू दिस ब्लू शीट। यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, एज यू कैन सी एंगल 1 एंड 2, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो जब आप यहाँ पे कंपास से कट करोगे ये एंगल, और यहाँ से कंपास से कट करोगे ये एंगल, तो 1 एंड 2, तो कंपास का जो रेडियस है दोनों सेम रहना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी ये कंपास का रेडियस यहाँ से सेम होना चाहिए एंगल 1 एंड 2 का। देन एंगल 2 एंड 3, तो ये रेडियस भी सेम रहना चाहिए एंगल 2 एंड एंगल 3। ये राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल है, और दोनों इंटीरियर में है। तो ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो ये रेडियस लोगे कंपास का, तो वो रेडियस आपके सारे इक्वल ही रखना। मतलब एंगल 1 भी उसी रेडियस का कट करना, एंगल 3 भी उसी रेडियस का कट करना है, एंगल 2 भी उसी रेडियस का कट करना है। सिर्फ एंगल 4 का रेडियस आप चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ एंगल 1 एंड 2 ऑन द सेम पोजीशन, ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये कौन सा एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल CP। देन एंगल 3 एंड 2, ये राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन एंगल 2 एंड 4, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल एंड इनसाइड ऑफ द लाइन, मतलब इंटीरियर में है। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल इंटीरियर, इनका सम क्या होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज़ 180 डिग्री। जो हमने यूज़ किया है ये सारी चीज़ें, ये सारे एंगल्स हमने क्वेश्चंस में यूज़ किए हैं चैप्टर 6 के। सेम आपकी एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी से आपको क्या होगा, एंगल्स
जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं. Now I think all of you have understood this activity. So you have to do this activity in your practical files and submit it, upload it on Chinar app by Thursday, that is 20th of August, and we will discuss it in our live class also, that is on Wednesday. And on Wednesday I will not take the test of chapter number 6. First of all we will clear our doubt and then I will tell you ki when is your class test. Okay, do this activity in your practical file. Thank you.